کیا تھے کس شے سے آشنا تھے، پردے الف کو ڈنڈا اور گوشے کو انڈا، کس شے سے آشنا تھے ہم جانتے ہی کیا تھے، سب کچھ ہمیں سکھایا استاد محترم نے، سچ پوچھئے تو ہم تھے نا آشنا ادب سے، معلوم تھا نہ ہم کو کرنا ہے بات کیسے، کوئی بڑا اگر ہو ملنا ہے کس طرح سے، عزت بڑوں کی کرنا ہم جانتے ہی کب تھے، کہنا بڑوں کا اپنے ہم مانتے ہی کب تھے، ہم کو ادب سکھایا استاد محترم نے۔ اب میں آپ کے استاد اور اپنے بھی استاد ڈاکٹر اسلم فاروقی صاحب کی نظر استعمال کروں گی، آپ لوگ بھی آمین کہیے گا کہ استاد محترم کو اللہ رکھے سلامت، توفیق دے وہ ہم کو پہچانے ان کی عظمت، دل میں بھی ان کی عزت ہو ان کی قدر و قیمت، استاد محترم کو اللہ رکھے سلامت، ہم کو پڑھا لکھا کر دل میں کیا اجالا، آنکھوں کو روشنی دے اور ذہن کو دلا دی، اللہ رکھے سلامت استاد محترم کو، انسان ہے بنایا استاد محترم نے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے ایک اور بات یہ ہے کہ لکھنے کا جو ہنر ہے یہ الحمدللہ آپ تو ماشاءاللہ بہت تیز لکھ رہی ہیں، شاعری بھی کر رہی ہیں اور نثر میں بھی ہے، تو یہ موجودہ زمانے میں اپنے تجربات کو لکھنے کا ان کے پاس ہنر نہیں ہے، تو خواجہ حسن نظامی کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ روز رام کا لکھا کرتے تھے، ڈائری لکھنے کا جو فن ہے، تو یہ ان کو کچھ کہیے کہ یہ دل کے جو جذبات ہیں جو کچھ بھی ان کے خیالات روزانہ جو ہوتا ہے لکھنے کی عادت کے لیے کیا کریں، کچھ نہ کچھ لکھتے رہیں۔ جی میں بھی الحمدللہ ڈائری لکھتی ہوں، مطلب اپنے روزمرہ کے جو بھی روٹین رہا یا جو بھی میری لائف میں کچھ نیا ہوا یا جو بھی میں نے سیکھا کہ کسی تجربے سے یا آج میرے ساتھ یہ ہوا تو میں نے یہ سیکھا، جیسے آج میں نے آپ سے گفتگو کری تو مجھے کتنی خوشی محسوس ہو رہی ہے اور کتنا اچھا لگ رہا ہے کہ سارے جذبات سے میں قلم بند کر دوں گی، تو مجھے لکھنا اللہ تعالیٰ جب لکھنے بیٹھوں گی تو اللہ تعالیٰ کچھ اور قوت دے گا کہ ہم اس کو مزید سے مزید تر لکھتے چلے جائیں گے انشاءاللہ، تو آپ لوگ ڈائری لکھا کریں۔ یہ بھی ہے کہ یہاں سے کچھ رسائل نکلتے ہیں بچوں کے، اور آپ کا اکثر وہ بھی سنا دیجیے کہ جو نور کا جو معاملہ ہے، کھلونا ہلال کا جو معاملہ ہے، یہ بالکل نہیں جانتے، نئی نسل کے لوگ ہیں، یہ کیا رسائل تھے، ان کی کیا خوبیاں تھی، جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہ وہی رسائل ہے جن کو پڑھ کر میں بڑا ہوا ہوں، تو یہ ان کو پڑھ کر رسائل کا تعارف کرا دیجیے، آپ ان کے گھرانے سے یہ بھی بول دیجیے۔ جی دیکھیے ہمارے یہاں سے ایک اصول ہے جو خواتین کے لیے خاص طور سے نکلتا ہے، اس کے لیے اعلیٰ صنعت ہے، اس طریقے سے نور ہے جس میں آپ ریڈیو ہندوستان کر کے ایک کالم آتا ہے جس میں آپ کو بہت معلوماتی چیزیں فراہم ہوں گی، ہلال ہے، میں انشاءاللہ آپ کے کالج کے ایڈریس پہ ہلال نور وغیرہ بھیجوں گی تو آپ کو مزید معلومات حاصل ہوگی اس کے بارے میں انشاءاللہ تعالیٰ، تو آپ اس سے پڑھ کر بہت دستیاب ہوگی۔ ہمارے یہاں بھی باصلاحیت لڑکیاں ہیں جو لکھ رہی ہیں، توحید نام کا رسالہ نکلتا ہے، اور اگر آپ یہ خواہش رکھیں کہ کچھ لکھیں تو آپ پلیز مجھے سینڈ کریں، میں آپ کو اس کے رسالے میں چھپاؤں گی۔ بہتر، یہ جو میڈم نے تعلیم والی تجویز رکھی ہے کہ آپ کچھ کہانی وغیرہ لکھتی ہیں تو یہ رامپور کی ہے، یہ اتر پردیش کی آپ ساری سنائیں گے، رامپور کہاں پر ہے، وہاں سے یہ رسائل نکلتے تھے جب ہمارا بچپن تھا، یہ رسائل پڑھتے بڑے ہوئے، نور ہے، ہلال ہے، کھلونا، اس طرح کی جو بچوں کے رسائل، میڈم نے کہا کہ آپ اگر کچھ لکھ کر بھیجتی ہیں تو وہ اس کو رسائل میں چھاپیں گے، یہ ہمارے لیے طالبہ کوشش ہے، یہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔ میڈم آپ کی بات۔ السلام علیکم۔
लगा मुझसे बात करके। जी हाँ, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। हाँ, जिंदगी के हालात में जैसे बदलते हालात में कैसे निकलना है आपने ये भी बताया। बहुत बहुत अच्छे मालूमात हुए हमें भी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत खुशी हुई जी। आपका शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। अगली बार के लेक्चर की दावत है जी, अगली बार आपकी और आपके अगली बार आपकी लेक्चर सुनना चाहते हैं हम और इंशाल्लाह आपका एक लेक्चर होना चाहिए जरूर। आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई माशाल्लाह। कोई भी आपके याद हो किसी का भी मुझे सुनाए। ज्यादातर अभी नहीं आता, शायद एक सुना रही हूँ। एक बोल रही जी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मुस्कुराकर देखे तो सारी दुनिया हंसी नजर आती है, मुस्कुराकर देखे तो सारी दुनिया हंसी नजर आती है, वरना मीठी आंखों से तो आईना भी धुंधला नजर आता है। वाह, बहुत खूब, बहुत। अच्छा, ये हमारी बेटी है आयशा, बहुत ज्यादा गुजरात कर रही है कि मैं शेर सुनाऊंगी अपनियों को तब। इरशाद 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 बोलो, इरशाद। कैसी है? ठीक है। हाँ, हम भी ठीक है, आप सुनाइए। हाँ, आप कौन सी क्लास में पढ़ रही है? अव्वल। गिरिराज। फूल है गुलाब का संभाल के तोड़ना। इरशाद इरशाद। फूल है गुलाब का संभाल के तोड़ना, तुम कभी भी नमाज मत छोड़ना। वाह वाह वाह। हाँ, ऐसा बहुत देर से मैंने कह रही मम्मा एक और बात करनी है। बहुत अच्छी प्यारी बात संभल के तोड़ना। हाँ, ऐसा चला बहुत सही है, अपने नाम के हिसाब से वैसे ही बातें करती हैं। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खासकर अपने सर की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने ये मौका दिया कि हम लोग आप अपने इस तरीके से बात कर रहे हैं। जी, बहुत खुशी हुई, आपसे बहुत बात करके खुशी हुई। बहुत खुशी। जी शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मुस्लिम लड़कियां इस्लामी तालीमात के साथ असरी तालीम पर तवज्जो मरकूज करे। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर सेलफोन पर प्रोफेसर सादिया सलीम का लेक्चर। औरत अल्लाह सुब्हाना ताला की तख्लीक करदा हसीन मखलूक है, जिसके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा कि वजूद जन से है कायनात में रंग। 21वीं सदी के मौजूदा मादा परस्त और अखलाक़ से आरी इंतशार के दौर में जरूरी है कि लड़कियां इस्लामी शायर की पाबंदी करें, हिजाब के साथ साथ आला तालीम हासिल करें, अपने आप को साहबियात की जिंदगी का अमली नमूना बनाएं और अपने वालिदैन और असातिज़ा और मुल्क व कौम का नाम रोशन करें। मौजूदा जमाने में लड़कियों के सामने कई मसाइल हैं, उन्हें आला तालीम से रोका जाता है और उन्हें समाज में कुछ खिदमत करने का मौका फराहम नहीं किया जाता। ऐसे में लड़कियों के लिए लाजमी है कि वो अपने वालिदैन और समाज को हम ख्याल बनाएं, दस्तियाब वसाइल से आला तालीम हासिल करने की कोशिश करें और तदरीस, तिब और दीगर शोबाजात में अपनी खिदमत पेश करें। इन ख्यालात का इज़हार असिस्टेंट प्रोफेसर उर्दू सेंट जॉर्ज कॉलेज आगरा सादिया सलीम ने गिरिराज कॉलेज निजामाबाद में शोभा उर्दू की जानिब से आलमी यौम ख़वातीन की ज़िमन में मुनक़िदा खुसूसी ऑनलाइन लेक्चर में बउनवान लड़कियों की आला तालीम मसाइल और इम्कानात से खिताब के दौरान किया। इस लेक्चर का एहतमाम डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी सदर शोभा उर्दू गिरिराज कॉलेज ने किया। उन्होंने एक क्लास रूम में फोन के जरिए इस खिताब को यकीनी बनाया।
इब्तिदा में डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी ने सादिया सलीम का तारुफ कराते हुए कहा कि वो नई नस्ल की खवातीन में मिसाली खातून उस्ताद हैं जो पर्दे की पाबंदी करते हुए आला तालीम हासिल की है और लेक्चरर के ओहदे पर फायज हुई। सोशल मीडिया को मोहतात तरीके से इस्तेमाल करते हुए हसूल इल्म में लगी हुई हैं और वो शायरा व अफसाना निगार भी हैं। सादिया सलीम ने अपनी जिंदगी की मिसाल पेश करते हुए कहा कि शादी के बाद भी वो अपने शौहर और अफराद खानदान की मर्जी से आला तालीम हासिल कर रही हैं और उर्दू में PhD करना चाहती है। उन्होंने लड़कियों से कहा कि वो औकात की पाबंदी का लिहाज रखें, मुताल्ले की आदत डालें, रोजाना कुछ न कुछ लिखने की कोशिश करती रहें, अदबी मुकाबलों में हिस्सा लें। इसके अलावा लड़कियों को तालीम के साथ साथ पकवान और सिलाई का फन भी सीखना चाहिए और अपने ज़ौक़ के एतबार से जिस फन में भी दिलचस्पी हो उसे भी सीख लें और साथ ही अपने समाज में दूसरों को भी पढ़ना लिखना सिखाएं। अपने असातिज़ा को कदर की निगाह से देखें, सोशल मीडिया का एहतियात से इस्तेमाल करें, जायज़ इसराफ और दीगर समाजी लानतों के खिलाफ इज्तिमाई जद्दोजहद की जरूरत है। समाज में बाहिसियत मुसलमान लड़की वो अपने आप को मिसाल बनाकर पेश करें और समाज की बेइंतशारी को अपने बेहतर अमल से दूर करने की कोशिश करें। इस मौके पर सादिया सलीम ने मुतरन्नुम आवाज में अपने अशार भी पढ़कर सुनाए और BO BCom की उर्दू मीडियम की तालिबात से कुछ सवालों जवाब भी किए। गिरिराज कॉलेज के लेक्चरर अदीबा नाज के ज़ाहिर तशक्कुर पर इस नशिस्त का इख्तिताम हुआ। इस लेक्चर के मौके पर तारीख के लेक्चरर मुबीनुद्दीन व दीगर मौजूद थे। कॉलेज के तलबा, असातिज़ा और प्रिंसिपल ने इस कामयाब काविश पर डॉक्टर मोहम्मद असलम फारूकी को मुबारकबाद पेश की और कहा कि वो तालीम के फरोग में टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करते हुए तालिबात को बाशऊर बना रहे हैं। आगरा से आए नए लेक्चर का एहतमाम दीगर लेक्चरर्स के लिए भी मिसाल है कि वो भी कॉलेज में बगैर किसी खर्च के अपने ताल्लुकात की बुनियाद पर माहिरीन के लेक्चरर मुनक्किद करवाते हुए तालिबात को मुस्तफीद करवा सकते हैं। इरशाद इरशाद फूल गुलाब